We were doing two-phase method. So this method we use when we have artificial variables in the problem. Artificial variables will be coming when you have surplus variables or equalities in the equation and you are not getting initial basic feasible solution. So I was doing this problem number 425. Problem, well, direct. It was the problem. Xz is equal to 5x1 minus 4x2 plus 3x3 subject to the constants 2x1 plus x2 minus 6x3 is equal to 20. 6x1 plus 5x2 plus 10x3 ये प्रॉब्लम थी। यस सर यही थी। हाँ ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लेस देन इक्वल टू था तो हमने प्लस s1 वेरिएबल यूज करके 76 लेस देन इक्वल टू था यहाँ पे एंड 8x1 minus 3x2 plus 6x3 either also it was less than equal to, so I use select variable s2 is equal to 50 here because you are getting only two columns, not third, so I just added one artificial variable a1. Then we got initial basic feasible solution by putting three variables to 0, so you got a1 as well as 2. a1 is 20, s1 is 76 and s2 is 50. ठीक है, फिर we constructed. So first we start with phase 1. Phase 1 में मैंने क्या बताया था, we have to construct an auxiliary objective function. ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या होगा भाई, minimize of z is equal to a1 है ना, इससे कन्वर्ट कर लेंगे मैक्सिमाइज में, तो मैक्सिमाइज ऑफ z star is equal to minus a1. For this objective function and for this equation I constructed one simplex table. So it was a table CV, YB basic variables, XB means values, and X1, X2, X3, S1, S2, artificial variable A1, and minimum ratio. So CV of CJ. So I will take objective function, the new auxiliary equation. So 0, 0, 0, 0, 0, minus 1, and it was your artificial variable A1, S1, S2, its value 20, 76, 50, and minus 1, 0, 0. And here the value of these coefficients. So coefficient matrix 0, 0, 1, 6, 5, 10, 1, 0, 0, and 8 minus 3, 6, 0, 1, 0. ये कहाँ तक कर दिया था, ये पूरी हो गई थी ये सिंप्लेक्स टेबल? यस सर दूसरी टेबल बन गई थी, दो हो गई थी, चलो ठीक है। हाँ तो यहाँ पर हमने डेल्टा जे निकालना था इसका, तो डेल्टा जे वाज कमिंग -2 -1 6 0 0 0. You know delta j is cbyj minus cj, है ना? So -2 is the most negative, so this will be entering, x1 will enter in the basis, and minimum ratio xb upon x1 है ना, xb upon x1 हो जाएगा यहाँ पे, जो एंट्रिंग वेरिएबल होता है उसका कॉलम. So it will be 20 upon 2 is equal to 10, 76 upon 6 is 12.6,
and 50 upon 8, 6.25. So this is minimum ratio, this is minimum, this will be leaving, है ना, leaves. So this is the pivot element. क्या आएगा, x2 will leave, x1 will enter. Second बना दी थी एक बार. So what you will do, two variables will be a1, s1, x1, and s2 will be leaving, and this 8, what it will be, -1 0, इसकी value भी 0 है, this must be 1, है ना. So we will divide this third row by 8, it must be 1. क्या आ रही थी वैल्यू को इसकी जब डिवाइड करा हमने, 50 by 8, 25 by 4, yes, 1, हाँ minus 3 by 8, हाँ 3 by 4, हाँ, 0, 1 by 8, 0. 0. ठीक, अब this must be 0, तो R2 minus R3 star, है ना. तो 77 by 2, 0, this one, 29 by 4, हाँ 11 by 2, हाँ, 1, minus 3 by 4, and 0. and then this R1 minus R3 star, so it will be again 0, 15 by 2, 2. 7 7 by 4, हाँ, minus 15 by 2, 0, minus 1 by 4, 1. 1. ठीक है. So again I will find now delta J, same way CB YB minus, तो अब -1 into 0 minus 0, 0 into 1 0. अब यहाँ वैसे भी x1 आ गया है तो ये 0 आएगा, it will be -7 by 4, 15 by 2, 0, 1 by 4, 0. So it is negative, again delta J negative coming, so it will be entering, x2 will enter now, and for leaving I will take minimum ratio xb upon x2, xb upon x2. तो ये कितना आ रहा था आपके पास, 15 upon 2 upon 7, 7 upon 4, 30 by 7, 4 point something. Second one will be 77 by 2 upon 11 by 2. So it will be 5 point something होगा. Third में because it is negative, so I will not take third, है ना, ये negative है. So this is your minimum. So it will be leaving. This leaves. That means artificial variable चला जाएगा. यही हम चाहते हैं. देखो always we want कि artificial variable should not present in the basis. और अगर present भी हो तो zero value के साथ हो, है ना? Because it does not have any physical meaning. तो यहाँ पर ही जा रहा है देखो. So what is the pivot element now? This. 7 by 4. ठीक है. Now, firstly write now your new basic variable. So A1 leaves, X2 enters. So X2, S1, X1. X2 की वैल्यू भी 0 है आपकी न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. तो 0, 0, 0. ठीक है. So यहाँ पे 77 by 2, 11 by 2 आएगा कि 29 by 4? हाँ 10 by 4 आएगा. ठीक है. हाँ यारी रो थी. ठीक है. Now I will divide by 7 by 4, or you can multiply by 4 by 7. है ना, एक ही बात है. On first row dividing by 7 by 4. So it is coming 30 by 7, 0, 1, minus 30 by 7, 0, minus 1 by 7, 4 by 7. Then you will have
सेकंड कॉलम, दिस सेकंड एंट्री ऑफ दिस कॉलम 0 है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ 29/4 टाइप्स करना पड़ेगा, देखिए। तो यू विल सब्ट्रैक्ट, क्या करना होगा, अगर ये R1 स्टार है सपोज, इसको मैं R1 स्टार कह देता हूँ, या कुछ भी नया नाम रखें, तो यू हैव टू डू नाउ सेकंड में इन R2 स्टार कितना करना है, R2 स्टार माइनस, है ना, ये अगर R2 स्टार तो R2 माइनस 20, यहाँ पे R2 ही लिखना है, वो ओरिजिनली रहेगी। ये थोड़ा सा इसमें ये है कि एक रो आपकी पुराने और उससे होती है, दूसरी रो जो होती है नए उससे, है ना, सेम मैट्रिक्स से नहीं होती है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि R2 तो ये है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है न्यू वाली में, ठीक है। चलो, तो इट विल बी कमिंग 52/7 0 0 1। Similarly here -3/8, तो इन R3 स्टार, 3 स्टार अगर ये न्यू वाली कह दो इसमें R3 प्लस 3/8 R1 स्टार, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था। It is coming 55/7 1 0 -6/7 0 1/14 3/14। Now again you will find delta J, which is coming positive। अब डेल्टा J हमने निकाला, ये तो 0, x1 भी 0 होगा, x2 भी 0, both are basic variables। s1 x3 is coming 0 0 0 and 1, ये वैल्यू निकल के आएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, सीबी में सब 0 है, देखो सीबी जब 0 है तो सारे को 0 होते चले जाएंगे, सिर्फ यहाँ -1 था, माइनस कीजिए तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो ऑल डेल्टा J पॉजिटिव। नाउ सिंस all delta J greater than 0 and optimum solution to the auxiliary LPP, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑक्सिलरी का इस्तेमाल किया है, has been obtained, has been found, and also good thing is no artificial variable is present in the basis। So now we can go to phase 2। phase 2 पे जा सकते हैं। phase 2 में क्या था, we will consider the actual objective function। Now consider the original objective function। That means max of z is equal to क्या था, ये वाला 5x1, और यहाँ पे क्या थी 0s1 0s2 0a1, ये था। I will not consider artificial variable because it has already removed, तो I am not writing 0a1, है ना, वो खत्म हो गया है। That was just for reducing that simplex into initial basic feasible solution, so I am not writing 0a1। Now construct the table for this। अब जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ये ध्यान रख, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान दे इस स्टेप पे, जो I will construct the table, तो what I will do,
गाड़ी दो पीछे। जी म्यूट करो भाई। शाहरुख भाई माइक। चलिए मैंने कर दिया। शाहरुख भाई पता नहीं कहाँ शूटिंग करते हुए। सो नाउ जो कंस्ट्रक्ट टेबल हम करेंगे इसके लिए दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपको स्टेप्स याद हो एल्गोरिथम व्हाट आई टोल्ड यू कि द लास्ट सिंपलेक्स टेबल ऑफ फेज 1 विल बी द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल ऑफ फेज 2, है ना। एक्सेप्ट कि जो वैल्यूज है इसकी सीबी की, ये हम अब जो लिखेंगे न्यू ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये पूरी वैल्यू एच हुआ है, लेकिन सीबी जो होगा वो अब आपके पास x2 0 नहीं होगा, सीबी होगा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ठीक है, यहाँ से। ओके, तो व्हाट आई विल डू, इसकी जो सिंपलेक्स टेबल बनानी है हमें, इस स्टेप को ध्यान से देखें। x1 x2 x3 s1 s2। अब a1 तो रिमूव हो चुका है तो a1 नहीं बनाऊंगा मैं। मिनिमम रेशियो वैल्यू भी पुट करेंगे। जो लास्ट टेबल थी तो क्या था, x2 s1 x1 x2 s1 x1। ठीक है, वैल्यूज क्या थी, 30/7 52/7 55/7 30/7 52/7 55/7। सिर्फ यहाँ सीबी में चेंज आएगा। सीबी क्या होगा बताइए जरा इसका, व्हाट इज सीबी? -4 हाँ 05। यस, बस सीबी चेंज होगा सिर्फ। ठीक है, तो द लास्ट सिंपलेक्स टेबल ऑफ फेज 1 विल बी द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल ऑफ फेज 2, इसी से कंटिन्यू हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ सीबी की वैल्यू चेंज होगी और सीजे की। ठीक है, ये 20 की वैल्यूज भी वही रहेगी जो हमारी लास्ट टेबल की आई थी। 0 1 -30/7 0 1 0 -1/7 0 0 1 and 1 0। ओके, पूरी ऐसे लिख दी है। नाउ अगेन आई विल फाइंड डेल्टा जे। अब फिर डेल्टा जे निकालेंगे इसका उसी फॉर्मूले से, सी बी वाई जे माइनस सी। चलो, डेल्टा जे डिफरेंट आएगा क्योंकि सी बी चेंज हो गया, सी जी चेंज हो गया, है ना। देखिए, तो x1 का तब भी 0 रहेगा बिकॉज बेसिक वेरिएबल है। x2 बेसिक वेरिएबल, इट इज आल्सो 0। s1 भी 0 होगा। ये दो निकालते हैं। सो यू नो हाउ टू फाइंड इट आफ्टर सॉल्विंग, इट विल कमिंग। ये निकालना आता रहे डायरेक्ट तुम्हें स्टूडेंट्स? डायरेक्ट लिख दूं या बताओ कैसे आया ये? फॉर्मूले से सिंपल है सर। वही है ना, सिंपल है। सीबी कितना है, -405। इसे रो में लिखेंगे। एक्स भी आपका कॉलम है। वाई जे कौन सा है, ये वाई जे है। -30/7 256/7 एंड -6/7। दिस माइनस सीजे कितना है, 3। 3। सॉल्व करोगे आ जाएगा। ऐसे ही S2 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है 13/14। सो ऑल डेल्टा जे पॉजिटिव। अगर यहाँ निगेटिव आ रहा होता तो फिर आप सिंपलेक्स मेथड लगाते, वैसे ही निगेटिव को लेते एंट्रिक वेरिएबल, मिनिमम रेशियो लेते लीविंग वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर ऑल डेल्टा जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हियर सिंस all delta j greater than 0, we get an optimum basic feasible solution of the original problem। क्योंकि फेज 1 में हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम ले लिया है ना, of the original problem। तो what you got here now, वैल्यू जो आ गई है x1 is 55/7,
x2 is how much? 30/7. x3 is how much? x3 is not here, 0. तो 0 है ना. 3 ये भी चाहिए होते हैं. S1 S2 में we are not interested because they have cost value 0 in the objective function. So max z is equal to, तो z is कितना था? 5x1 minus 4x2 plus 3x3. 3 is 0. So it is coming after solving 155/7. ठीक है. This is the answer. So here you have to do this by taking two phase method. समझ में आया भैया? Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा lengthy method है ये. But if you have artificial variable in the problem, you have to use this method. एक प्रॉब्लम और करा देता हूँ जिसपे आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा. आर्टिफिशियल वेरिएबल विल नॉट रिमूव. यहाँ पे क्या हुआ था? आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका रिमूव हो गया था थर्ड स्टेप पे आके, थर्ड एल्गोरिथम पे. लेकिन समटाइम्स पॉसिबल इट इज नॉट रिमूविंग. जैसे प्रॉब्लम 424 है, इससे पीछे वाली प्रॉब्लम है. यूज टू फेज मेथड टू सॉल्व max z is equal to 5x1 plus 3x2 subject to the constants. छोटी सी प्रॉब्लम लिए टू वेरिएबल. इससे आप वैसे ग्राफिकल से चेक कर सकते हो इसका आंसर क्या आएगा. हमें अगर टू फेस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर टू फेस तो लगाना ही पड़ेगा हमें, यू नो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपको सब प्लस वेरिएबल यूज करना है यहाँ पे. इक्वेशन जब चेंज करेंगे, यू विल अप्लाई सिलेक्ट वेरिएबल s1 is equal to 1. Here you will have to apply what? सरप्लस है ना, माइनस s2. लेकिन जब माइनस s2 लाएंगे तो प्लस a1 you have to write to get initial basic feasible solution, है ना. a1 लिखना पड़ेगा भाई, नहीं यहाँ पे. Yes, sir. Identity matrix बनाने के लिए. हाँ, है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. अब आपकी जो टेबल होगी देखिए, 2 1 और 1 0 0 1 4 0 -1 1, है ना. इसका -1 आ रहा था तो ये नहीं बन रही थी, लेकिन थर्ड और फिफ्थ कॉलम से आइडेंटिटी बन जाएगी. तो आपका यू गॉट योर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. 2/2 की जो मैट्रिक्स हम लेंगे, क्या हो जाएगा वो? S1 is 1, A1 is 6. Okay. Now I will construct phase 1 करेंगे. phase 1. तो phase 1 में आपके पास ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स ऑफ z स्टार इज इक्वल टू -a1. ठीक है. इसकी जब आप टेबल बनाएंगे, टू टेबल में काम हो जाएगा इसमें. So here you will write CB, YB, XB, X1, X2, S1, S2, A1, minimum ratio. CJ is 0, 0, 0, 0, -1. These are
S1 A1. CV is 0 minus 1. Values 1 6. This is the coefficient matrix 2 1 1 0 0 1 4 0 minus 1 1. Okay, let us start the process. Delta J CBYJ minus CJ. तो 0 2 0 minus 1 1 minus 0 कितना आ गया -1. This is -4 है ना. And S1 is 0, S2 is 1, A1 is 0. Now this is the most negative. So this is entering. X2 enters. Ratio 1/1 is equal to 1. 6/4 is equal to 1.5. So it is leaves. So which one leaves? S1 leaves, है ना? And this is the key element. Luckily it is 1, so no need to divide by any number. Calculation थोड़ा easy हो गई. 1 है already है ना? So I will write S1 is now what? X2 A1 as it is. X2 की वैल्यू अभी 0 ही है. A1 is -1. 1 आपके पास ऑलरेडी था की एलिमेंट में, तो आई विल राइट एज इट इज, है ना. नो नीड टू डिवाइड बाय एनी नंबर. नाउ इट इज 4, सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स. क्या करना है? अगर ये R1 स्टार है तो सो R2 स्टार जो है यूरो कैसे लिखेंगे? R2 माइनस 4 R1 स्टार. इसको अगर मैं R1 स्टार कहता हूँ तो 6 क्या आ गया? 6 माइनस 4 टाइम्स. 6 माइनस 4 टाइम्स कितना हो गया? 2 माइनस 7 0. ओके, नाउ डेल्टा जे कितना आएगा? देखिए 0 माइनस माइनस 7 माइनस दिस 7. दिस इज 0. 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -4 इज 4. 1 0. क्या आ रहा है भैया? और डेल्टा जे देखिए. greater than 0 हाँ, positive. अब पॉजिटिव हो गया तो इसका आगे तो अब नहीं बढ़ सकते. सिंपलेक्स मेथड ही स्टॉप हो जाएगा जैसे ही सब पॉजिटिव आ गए, है ना. तो इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया आप. दिस मींस एन optimum BFS to the auxiliary LPP is obtained. But अब मैक्स जेड कितना निकाले यहाँ पे? अगर हम मैक्स जेड की वैल्यू निकाले, -2. मैक्स ऑफ जेड स्टार कितना आ रहा है? -A1 -2 है. ये क्या है? लेस देन 0. तो आपको जो मैंने 3 केस लिखवाए थे कि 3 केस आर पॉसिबल, तो उसमें एक केस क्या था कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन द बेसिस विद पॉजिटिव वैल्यू and max z is less than 0, then this has an infeasible solution, है ना. It was the case कि where max z star is negative and artificial variable a1 is present with पॉजिटिव वैल्यू. अगर 0 वैल्यू होती तो अलग बात थी. पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्रेजेंट है, तो इट मींस दिस implies that LPP has an infeasible solution. Has LPP मतलब ओरिजिनल LPP has an infeasible solution. ओके, क्योंकि यहाँ पर ये रिमूव नहीं हुआ आपके पास और ये वैल्यू नेगेटिव आ गई. ये केस था आपका. 3 केस लिखवाए थे, उस केस में आ रहा है.
ये आप ग्राफिकल चेक कर सकते थे। देखो ग्राफिकली अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अगर टू वेरिएबल की प्रॉब्लम है। 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 मींस क्या आएगा, x1 पर आया 1/2 है ना, x2 पर 1 लेस देन 1 मींस टुवर्ड्स ओरिजिन, ये रीजन आता है आपके पास। सेकंड क्या है, x1 प्लस 4x2 ग्रेटर इक्वल टू 6, इससे आप इक्वलिटी बनाएगी क्या हो जाएगी, x1 अपॉन 6 प्लस x2 अपॉन हाउ मच 6 अपॉन 4 है ना, 3/2 इज इक्वल टू 1। कहाँ आएगा ये, सपोज हियर इट इज कमिंग 6, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू किधर जाएगी साइड, अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन है ये। सो व्हाट इज दिस केस, No common region. दैट मींस Infeasible. इनफीजिबल सॉल्यूशन है ना, नो कॉमन रीजन, इसी को हम कहते हैं इनफीजिबल सॉल्यूशन। तो वो चीज आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया और आर्टिफिशियल मेथड से, टू फेज मेथड से आपने निकाल के देखा तो वही केस आता है। ठीक है भाई, Yes. यस गुड। तो ये दो प्रॉब्लम्स आपको मैंने कराई है, बाकी आप और प्रॉब्लम्स है जो आप खुद करेंगे। आई एम गिविंग यू योर होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स 429 432 टू फेज मेथड से। नेक्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस artificial problems, it is called big M method, big M method, और इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ पेनल्टीज, मेथड ऑफ पेनल्टीज। ठीक है, दिस इज अनदर मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी हैविंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो इसके भी एल्गोरिथम है, और ये इट दिस मेथड इज कंपैरेटिवली easier देन टू फेज मेथड, थोड़ा सा इजी है, स्टेप इसमें लेंथ कम है। इसमें स्टेप एल्गोरिथम लिख दे रहा हूँ मैं भी, प्रॉब्लम तो टाइम नहीं है, कल करेंगे। स्टेप 1, राइट द एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड चेक इनिशियल बेसिक feasible solution exist, है ना। तो टू चीज हो गया, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इफ यस देन गो टू स्टेप 3, एग्जिस्ट कर रहा है तो डायरेक्ट स्टेप 3 पे चले जाएंगे, मतलब स्टेप 3 के आप वही डायरेक्ट सिंपलेक्स मेथड सॉल्व कर लेंगे। इफ नो देन गो टू स्टेप 2, तो हमारा स्टेप 2 आएगा, है ना। स्टेप 2 पे बिग बिग मेथड स्टार्ट होगा आपका। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 सेम थिंग, पहले तो आपको क्या करना है, ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स द लेफ्ट साइड ऑफ ईच इक्वेशन that has no starting basic variables, है ना। वो सारी जिसपे स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल्स लाई है वो वही होंगे जो सरप्लस वाली इक्वेशंस होगी या इक्वालिटी वाली। assign a very high penalty say m to these variables in the objective function,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अभी तक आप क्या करते थे भाई, कि जो भी वेरिएबल लिखते थे सिलेक्ट सरप्लस आर्टिफिशियल, उसका कोएफिशिएंट 0 होता था, कॉस्ट वैल्यू 0 होती थी। बिग एम मेथड में जो आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आएंगे उनका कोएफिशिएंट को आप क्या लिखेंगे, विद एम लिख देंगे, एम इज वेरी हाई वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अब क्या रखना है वहां पर, एम ए वन प्लस एम ए टू प्लस एम ए थ्री, लाइक दिस, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे हैं। ओके, then I will continue it tomorrow. ओके सर। हाँ, टाइम नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर।